All right. So what will I do? Okay, give me 30 seconds. Okay, I'll upload that one. Just one second. Can you read this? All right. See, ये क्वेश्चन आया था 2012 में. Can you read this? छोटा है ना? I can't help it. Sorry. Okay. नहीं पढ़ पाए हो? You can't read it? Okay. अच्छा, I can't help you on this. So I'll just tell you this. इसमें you can read. Okay. Sorry, but whatever. एक बार देख लेते हैं. ये क्वेश्चन आया था. Now you please give me honest opinion, okay? All right. So ताकि बिल्कुल clearly opinion देना, okay? So comment on the significance of the preamble contained in the Right to Information Act UPSC 2012 में क्वेश्चन आया था. Okay. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में यूपीएससी 2012 में आता है कि प्रीएम्बल में क्या था. ओके, और कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस. तो मैं इसमें लिखा हुआ है. सो दिस इज द मेंस आंसर द वे इट इज टू बी रिटन. So I have just made this for my book. So it says preamble of the RTI Act 2005 reads that the citizens shall have the right to the information under the control of the public authorities. फिर मैंने ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का पूरा प्रीएम्बल आरटीआई एक्ट का 2005 का प्रीएम्बल मैंने इसमें ऐसे लिख दिया. ठीक है, राइट. फिर the underlying aim of this act is to promote transparency of information which helps the citizens take informed decisions. To control maladministration, corruption, arbitrary action of the government, and number 3, to keep the government and public authorities accountable to the people. फिर मैंने लिखा है, there are certain exemptions regarding disclosure of certain information under this act. Some of these exceptions are Official Secrets Act 1923, Section 8 of RTI Act 2005, and Section 11 of RTI Act 2005, which deals with third party information. तो मैंने पूरा Section 8 ये लिखा हुआ है, जैसे Section 8 of RTI Act, जिसमें सारी exemptions लिखी हुई है. ओके, उसी तरह से मैंने पूरा Section 11 ये लिखा हुआ है, ओके, जिसमें वो exemption लिखे जो थर्ड पार्टी से डील करती है, थर्ड पार्टी information. This implies that the public authority may deny information under the conditions, under the exemptions as provided in the RTI Act 2005 if public interests come under conflict by providing such information to the applicant seeking the information. फिर मैंने लिखा है conflict between privacy and RTI Act 2005. Another ground for exemption which enables the public authority to deny information is the ground of privacy as provided in Section 11. फिर मैंने लिखा है definition of privacy. The literal meaning of privacy is a state in which one is not observed or disturbed by other people. ये privacy की definition है. फिर मैंने लिखा right to privacy is a part of Article 21 of the Indian Constitution which provides that no person shall be deprived of his life and personal liberty except by procedure established by law. Privacy has been described as Article 21 by Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India Supreme Court judgment. जिसको आधार judgment बोलते हैं. Defining the scope of privacy. Privacy primarily concerns an individual and is therefore related to concept of liberty. There are serious problems of defining the scope of this right. What shall be the outcome when a dispute arises between the privacy of an individual and the right to information of the citizen? The most probable and logically acceptable response is that the former right has to give way to the latter right as it serves the larger public interest. So, the significance of the preamble contained in the Right to Information Act. Right to privacy is a part of fundamental right guaranteed under the Constitution. However, no rights, including the right to privacy, are absolute right. It implies that the specific laws can override this right when the larger public interest is involved. A balance needs to be struck between individual liberty and principles of national interest. It is logical and desirable that a harmonious middle way be reached through policy, legislation, and judicial intervention as may be necessary. Are you clear? How do you find this? Honestly, how do you find this? देखो मैंने इसमें privacy पे है, तो मैंने पूरा explain कर दिया what is privacy. I have explained right to information और ये 300 words में आ रहा है. Okay. Honestly, suggest me anything that you have to do this. See, this has come in 2012 questions, so I have now made about 50 questions and related it to another about 200 topics. So 250, 300 topics को I have related this part. अभी मेरे पास time नहीं है. When मैं तुमको Supreme Court judgments को explain करता चले जाऊँगा. Okay. So I have explained the entire right to privacy with that part also. So I think God willing, we should get this book in another 20, 25 days or something. Let's see. Okay. Sure. Thank you. Thanks a lot. Any opinion that you want, please let me know. Okay. So I'll just suggest this one second. I'll just get back to our normal topic. Yes, I'm writing all. मैं सारे ये judgments को ही कर रहा हूँ. Okay. So I am reading it out. मैं अगर तुम्हें दिखाऊँ क्या? एक मिनट. एक सेकंड. I'll just show you. मैं तुमसे opinion ले रहा हूँ तो फिर मैं पूरा ले लेता हूँ. Just one second. Please मुझे correct suggest करना. Okay. ये read कर पा लो. Can you read it? Yes. So these are the topics. Okay. This is the entire opinion. Okay. देखो this is ये पहला वाला जो मैंने अभी तुम्हारे लिए किया significance of preamble of RTI Act. इसके साथ connected topics है right. ऐसा ये table of contents जा रहा है book का. इसके साथ connected topic right to privacy, LGBT rights, आधार judgment. फिर doctrine of separation of powers. और फिर मैंने आगे लिखा है कौन से year में पूछा है. Okay, 2012. फिर doctrine of separation of powers ये क्वेश्चन आया. doctrine of checks and balances वो इस साल का फर्स्ट क्वेश्चन था. I hope you know this. फिर मैंने controversy related to EVM, ECR powers and VVPAT से connected topics है. ये 2018 का है. फिर dispute between chief minister Delhi and LG 69th amendment ये 2015 में भी पूछा और 2018 में भी पूछा. Failures of local governments in India 73rd and 74th amendment 2017. Constitutional reservation of scheduled caste and scheduled tribes religious minorities 2018 में क्वेश्चन आया था. इससे National Commission of Scheduled Caste Scheduled Tribes आ जाएगा. Temporary provisions of Constitution with Jammu and Kashmir 370 के 2016 में आएगा. Okay. फिर ये इससे related topics में इस discussion में करता चला जाऊंगा. मतलब मैं क्वेश्चन को आंसर नहीं दूंगा, मैं उससे related topic आ जाएगा. फिर NJSC पे क्वेश्चन आया था 99 आर्टिकल 50 और जुडिशियल अपॉइंटमेंट 2017 का. फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 कॉन्ट्रडिक्शंस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम 2016. ऐसे करते करते this will go on and 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 on. ऐसे करके 50 है. So there are finally भी आ गया. So role of parliament and ruling government 2011 13 14 में आया. Presidents आपका ये जो टॉपिक है 11 12 14 15 में आया. Importance of preamble 2012 में आया. Fundamental duties 11 में and so on and so forth. So this is my plan. Okay, so this is how 50 topics. These are asked questions. मुझे मालूम है asked questions है. So this will be the entire thing. और जैसे मैंने explain किया, for example, ambit of article 21 क्वेश्चन आया था 2012 में, तो उसमें life and liberty वगैरह मनेका गांधी केस वगैरह सब कुछ describe कर दूंगा. Okay, this way and so on and so forth. So that's the plan. So I've written 30% I've written. Let's see what happens finally. Okay. All right. Sure. After topic. Yes, I'm writing answers, Richard.
मैंने आंसर तो लिखा था आरटीआई वाला, बेटा आई डोंट नो, या तो ओक ब्रिज होगा या जीकेबी होगा, आई डोंट नो, तो टाटा मेट्रो होगा या ओक ब्रिज होगा। लेट्स सी, अब दे हैव टू साइन एन एग्रीमेंट, लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क, देखते हैं। ओके, oh I love to see you Masood. Sure, let me see, hopefully I'll write the book of data published, but I think within the month ho jana chahiye, hopefully, God willing. Bobby sir is asking some doubts. Bobby sir, how much majority is required in joint session? Joint session, simple majority, ordinary bill. During lapsing, which house has more power? Lok Sabha has more power. Yes sir, अब तो तुम बड़े एडवांस स्टूडेंट्स हो गए बॉबी साहब, अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? So are you checking answer writings too? Answer writings too? Which answer writings? I'm not checking any other answer. But would be great if you start off with what he will be learning in the upcoming topic, which may boost our interest for the reader, and a few highlights for definition and important points to make it best. Thank you, Pravesh. I'll just see to it. Good idea. Okay, sir, अभी हमारे औकात इतनी नहीं कि आपके वर्क पे कमेंट करें, इससे अरे ऐसे मत बोलो भैया, ऐसा मतलब you are leader is the king, my friend. Okay, you are the king. सब लोग अपने अपने से बेस्ट बुक लिखते हैं, my friends. What communicates well is the answer. और बना के वो बहुत बड़ी भगवान करे हो जाओ. This is a book. This is a book. I'm writing this. I started writing today. The publisher has asked. Sir, in introduction answer, please provide background of the topic asked. Writing today, the publisher has asked. Sir, in introduction answer, please provide background of the topic asked. Background of the topic asked. What is background of the topic? What is the background of the topic? I'm explaining all the topics related to it. Background of the topic, I can't say. When can we order? Beta, पहले publish हो जाने दो बच्चे. पहले वो publisher को accept कर ले. I'll give you a copy. Shipal, suspected sir, आपके हाथ जोड़ के विनती है, sir, please please sir. Optional. Oh, कहाँ? Unacademy पे. Oh. I would suggest, sir, in the place of giving all article, you should write how I dictate. But dictation ना book में बड़ा awkward लगता है. Okay, it is the book does not come out in the way of dictation. Local language लग जाती है. So you have to copy it ना, it becomes very difficult. सबको नहीं समझ में आता. Book को लिखना and dictate करने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है. So mind map of important articles in each chapter. हाँ, this can be a thought process. Okay, I'll suggest this mind map. Okay, yes, this is a good idea. एक मेरे को परवेज साहब को भी अच्छा लगा था. This is also a good idea. Okay, I'll just write it down someplace. Okay. Comment again, please. Use emoji which makes it easy to understand. Okay, I may think about it. पता नहीं वो publisher इसको serious book की तरह से कर पाएगा कि नहीं, but means question answer. अच्छा, okay, सोचा है मैंने. Bilingual. Oh, bilingual मुश्किल होगा मुझे लगता है, but at least I'll try and write in easy language, but I don't think bilingual. Mnemonics, okay. Mnemonics is a good idea. Okay. Asankya, there is no punishment as such until unless he is found guilty of misusing it. तो उसके बाद उसको fine लगा देते हैं RTI Act में. Okay. So first of all, very sorry in getting on. My question is, what is the punishment if any problem? That's what I'm saying, Asankya. Okay. There is a punishment, 100% there is a punishment, but that is in very rare cases. Okay, very rare cases, but yes, there is a, but usually it is in the form of a penalty or something like that, not punishment. Okay. Few motivation like topper material Lavasna Masuri in the book. थोड़ा मुश्किल होता है इंग्लिश, आई थिंक, पता नहीं. कैन आई? बेटा तुम लोग ना मुझे जानते हो, ओके, इसलिए तुम लोग पढ़ लोगे, ओके, ये सब वर्ड समझ जाओगे. फॉर एन एलियन राइटर ना उसको लगेगा भगवान जाने क्या लिख दिया इसने. यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू नो समबडी टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. यू नो, अननोन पर्सन को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, कौन मसूरी, कहाँ जा रहे हैं, यू नो, ही वांट्स टू रीड द सब्जेक्ट. यू नो, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आ जाती है बुक में. ओके, बुक में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आ जाती है माय फ्रेंड्स. राइट, टीचिंग इज अ वेरी डिफरेंट आर्ट. ओके, एंड मैं टीचिंग में तुम्हारे साथ अंडरस्टैंड कर सकता हूं. दैट इज व्हाई मुझे नहीं लगता सिर्फ बुक पढ़ के कोई एग्जाम पास कर सकता है. ओके, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बुक पढ़ के एग्जाम पास करना इज वेरी डिफिकल्ट. दोनों करो जी, do both of them together. Okay, so let's see this. Thank you in any case. Prashant is asking, respected sir, after all your lecture I came to understand the constitution of taking decision by all constitution. Thank you Prashant, God bless. Okay, and so your writing include the article and important points, and I guess for a perfect writing that is important, you include, and it's a good part of the book. Yeah, I'm trying, I don't know, but I think this will be a simplistic way of writing it. Okay, but of course you can please suggest, your suggestions are most welcome. Okay, grey box, all right, fine, I understand. Okay, so grey for something which is not written in the constitution, and white for what is actually grounded. I can understand this. Okay, thank you. But PSIR, I cannot teach on an academy. Okay, it's not possible. Okay, I don't have that luxury of time. Okay, but
I do teach PSIR as optional, but अभी के लिए मेरा कुछ प्रोग्राम है नहीं. Okay, तो शेरपाल अभी के लिए तो रुक जाओ, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो I'll suggest tell you this. For the time being, sorry, can't help you. Okay, after January maybe. पहले इनका कोर्स खत्म हो जाए तो. Okay. All keywords. Okay, keywords. Okay, keywords I can explain. All right, that's a good idea. Okay, keywords I can explain. See, IR I will explain completely. Okay, international relations I'll do it completely. Okay, मुझे लगता है IR मुझसे ज़्यादा कोई पढ़ा पाएगा. Okay, वो जो optional भी ले रहे तो I know IR better than anybody. Okay, so but political science will have to manage. PS will have to manage. Okay. Do both. I told you, do both of them together. Sure, yeah. Let's start the topic. Sir, if possible, please add the topics which are not asked till now and probability. See, this is the plan, Dipali. I have taken 50 questions and connected them to 4 or 5 topics which have yet not been asked. So that actually takes for 50 asked questions and 250 not asked questions. So this is the best thing I can do. Okay, that's the only way. Sir, decision on it is not concerned. No, but I am discussed. Okay, chalo, yeah, let's start the let's do it later, please. Okay, when your topics ही रह जाएंगे. Okay, चलो आज का topic में बात करें सब देख लेंगे. आज हम लोग start करें judiciary. Okay, so let's start with judiciary. Now understand what I'm trying to tell you. Okay, please understand this. आज हम लोग start करें judiciary. Okay, so let's start with judiciary. Now understand what I'm trying to tell you. Okay, please understand this structure. जैसा मैं बना रहा हूँ. Now what am I saying? Now हमारा judicial system is like this. Please understand this. The judicial system is like this. It is a pyramidal structure. क्या बोलते हैं इसको? It is called as a pyramidal structure. Pyramidal structure of our judicial system में एक wide base है. Say the word. There is a wide base. और वो धीरे 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 taper करता है. Say the word. The word is taper. और end करता है into a singular apex. इस system को इसीलिए pyramidal system बोलते हैं. और pyramidal system में at the lowest points there are subordinate codes. क्या बोलते हैं इसको? Subordinate codes. Okay, जिनको lower codes बोला जाता है. जैसे आजकल तुम 30,000 के बारे में सुन रहे हो. Okay, that is a subordinate code. फिर there are high codes. And then there is one singular supreme court. Having one supreme court at the top, इसीलिए is called as the apex court because वो बिल्कुल top पर है और वो singular है. Are you understanding this part? Friends, सबको समझ आ रहा है? Yes. Now इस pyramidal system में जो law यहाँ obey हो रहा है, वही law यहाँ obey हो रहा है, वही law यहाँ obey हो रहा है. In other words, unlike USA, जहाँ पर states के अपने अपने laws भी हो सकते हैं. States can have their own set of laws. इंडिया में you have an integrated judicial system. मतलब जो law interpret हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में वही law यूज हो रहा है, हाई कोर्ट में वही law यूटिलाइज हो रहा है इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो इसका फायदा क्या है सर? इसका फायदा ये है माय फ्रेंड्स कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ पे डिसाइड कर दिया, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ पे डिसाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन डिस्क्राइब किया लाइफ इज इक्वल टू लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया. तो भाई अब ये बोल दिया, इन अदर वर्ड्स अब ये डिसाइडेड हो गया. दिस सुप्रीम कोर्ट का लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया. ये लिखा हुआ है आर्टिकल 141 में. कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Article 141 of the Constitution says that the law of the Supreme Court, law of decided by the Supreme Court, is binding on all courts. तो सर सारे हाई कोर्ट्स इसके अंडर आएंगे? एब्सोल्युटली. सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे? यस, एब्सोल्युटली. पूरा हिंदुस्तान का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितने भी कोर्ट्स है दे आर बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो हाई कोर्ट है, okay, उसका डिसीजन ऑफ लॉ, हाई कोर्ट का डिसीजन ऑफ लॉ इज आल्सो बाइंडिंग, लेकिन ओनली ऑन दोज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओनली ऑन दोज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो इस हाई कोर्ट वाले स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आते हैं. तो दिल्ली हाई कोर्ट या महाराष्ट्र कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, जो जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है उन सबके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बाइंडिंग होगा. तो सर इसका मतलब है ये भी बाइंडिंग है. यस, लेकिन सब कोर्ट्स अपने नीचे वाले कोर्ट्स पर बाइंडिंग इफेक्ट करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंस. क्या बोलते हैं इसको? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंस. ओके, ये इसलिए क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है बिकॉज इससे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ रहता है. क्या रहता है? इससे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ रहता है, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. तो ये मनिका गांधी केस में आ गया फॉर एग्जांपल. ओके, और मैं केरला का जज हूं, केरला सबऑर्डिनेट कोर्ट का, और मैं अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट बोलता हूं. मैं नहीं मानता. ओके, लाइफ इज ये थोड़ा होता है. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, chaos हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ओके, दैट इज व्हाई द सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा दैट इज बाइंडिंग ऑन दोस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो कि सुप्रीम जो उसके जुरिस्डिक्शन में बने हो, जो भी होगा. सो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर जुरिस्डिक्शन में जो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे व्हिच विल कम इन दैट टेरिटरी. आर यू क्लियर ऑन दिस पार्ट और नॉट? यस फ्रेंड्स, एवरीवन हैज अंडरस्टूड और नॉट? ओके, दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीसिडेंस, राइट? इसके बिना ये काम चलेगा नहीं, इसके बिना नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी. सर लेकिन एक और लाइन लिखी हुई है आपने, इंडिपेंडेंट. हाँ, इंडिपेंडेंट इससे सर, लेकिन इंडिपेंडेंट बड़ा अजीब वर्ड है. टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंस हमें आर्टिकल 124 पढ़ना पड़ेगा. ओके, आर्टिकल 124 पढ़ते हैं. हमने बोला आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, बाय द वे तुम्हें मालूम है सुप्रीम कोर्ट इज डेल्ट फ्रॉम आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहां से कहां तक? 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, इज बीइंग डीलिंग विद द सुप्रीम कोर्ट.
अब सर इसमें आर्टिकल 124 अगर मेरे को समझ में आ गया ना तो बाकी सारी सिनेरियोस काफी हद तक क्लैरिटी से आ जाएगी. सो व्हाट इज आर्टिकल 124 saying? आर्टिकल 124 saying सिंपल सी एक लाइन बोल रहा है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. वेरी गुड. सो हमने क्या बोला, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये मैंडेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी. ओके, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. उसमें फिर बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट लाइन है, इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and ध्यान सुनना, such number of judges as the parliament may decide. So the parliament may decide the number of judges to the supreme court. अरे सर ये कुछ गड़बड़ है. गड़बड़ क्या है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है. ओके, इट इज पार्लियामेंट इज डिसाइडिंग दिस काइंड ऑफ, इज डिसाइडिंग द नंबर ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट. मैंने कहा हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपने बोला इंडिपेंडेंट है. बेटा यही इंडिपेंडेंट हो सकती है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं आइलैंड बन जाऊं. ओके, इसका मतलब होता है दैट हमारे पास कुछ काम पार्लियामेंट ही करेंगे. तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी है, तो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट आल्सो. तो ये जो वर्ड इंडिपेंडेंट है ना, ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है. इट इज अ रिलेटिव टर्म. सर वर्ड, इट इज अ रिलेटिव टर्म. तो इसका मतलब है मुझे ये लाइन ओके बहुत स्ट्रिक्ट नहीं बनानी पड़ेगी. ये जजेस नंबर है या बाद में भी हम देखेंगे बहुत सारे टर्म्स, ये सेल्फ इंपोज्ड है. सर वर्ड, इट इज सेल्फ इंपोज्ड. इंडिपेंडेंस इज नॉट आइसोलेशन. मेरी बात समझ में आई या नहीं? ओके, व्हाई? बिकॉज हम लोग तीनों एक ही ऑर्गन है और तीन ऑर्गन्स एक ही चीज के, किसके? स्टेट के. लेकिन जो इसमें एक मेजर इंडिपेंडेंस दिखाई देती है वो दिखाई देती है जब मैं कोई केस करता हूं अगेंस्ट द स्टेट. तो सिद्धार्थ ने केस किया वर्सेस द स्टेट, दैट इज इंडिया को. तो सिद्धार्थ ने केस किया किसको? किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट. किसके पास स्टेट किया? सुप्रीम कोर्ट के पास किया. और सुप्रीम कोर्ट खुद ही पार्ट ऑफ द स्टेट है. यस और नो? मैंने क्या किया? सिद्धार्थ हैज डन अ केस अगेंस्ट द स्टेट, राइट? और किसके पास गया? सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट खुद ही पार्ट ऑफ द स्टेट है. तो सर ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चला गया कहानी. यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है कि जब जुडिशियल फंक्शंस करता है, ओके, तो जुडिशियल फंक्शंस करता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को स्टेट की डेफिनेशन से अलग कर सकता है. ओके, इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, मैंने क्या बोला, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए स्टेट का पार्ट रखेगा. जुडिशियल फंक्शंस के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. मैं दो बातें बता दी. इंडिपेंडेंट का मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब आइसोलेशन नहीं होता, नंबर वन. नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मैं फिर भी कभी कभी अलग हो जाता हूं. मैं फिर भी कभी कभी अलग हो जाता हूं जब मैं जुडिशियल फंक्शन करूंगा. तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है. ये आजकल सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन ही नहीं हमारे यहाँ पे क्लियर होगी. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सुप्रीम कोर्ट इस हेडेक को अभी तक नहीं सॉल्व कर पाया. तो फाइनली हम लोगों ने खुद ही आंसर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करेंगे तो डियर सुप्रीम कोर्ट हम पार्ट ऑफ द स्टेट है, लेकिन जुडिशियल फंक्शंस करेंगे तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसी वर्ड को, ये जो हम कभी कभी पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं रहते, इसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए. दो पार्ट्स हो गए. आर वी क्लियर ऑन दिस फ्रेंड्स? Everyone is clear? Okay, ये ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे my friends. Judiciary is a very trappy exam. Okay, इसमें तो हम सीधा शेर के डेन में पहुंच गए. Okay, इंटायर सुप्रीम कोर्ट के एरिया में पहुंचे तो वहां पे सब कुछ इंटरप्रिटेशन ही होता है. Okay, so please understand this. सबको समझ आ गया? तो हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या हुआ? हमारा हुआ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, और इसका स्ट्रक्चर इज पिरामिडल इन टाइप. बच्चे समझ में आ रहा है? एवरीवन, अब हम आगे चलेंगे. अब बड़ा मेजर ट्रैप स्टार्ट होने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनते रहो. ओके, अब मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट को पूछा, डियर सुप्रीम कोर्ट आपका काम क्या है? तो बोले, व्हाट डू यू मीन सर, हमारा काम क्या है? हमारा काम कोर्ट का काम है. तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गए. ओके, आप मुझे एक बात बताओ, आपका और हाई कोर्ट के काम में फर्क क्या है? ओके, हाँ. तो बोला अब सही क्वेश्चन पूछा सिद्धार्थ ने. तो मैंने बोला ओके माय लॉर्ड आप बताओ. तो बोले कि सिद्धार्थ, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल प्लान था कि हम बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. क्या बनेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. ओके, तो मैंने कहा मतलब सर? तो बोले माय लॉर्ड्स, बोले सिद्धार्थ, वी विल बी द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने क्या बोला? वी विल बी द, बोल रहा द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मैंने कहा ओहो सर, ये आपको कहां से पावर मिली? तो बोले सिद्धार्थ, तूने ना कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं पढ़ता. वो लिखा हुआ है आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 129 दैट वी आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है सिद्धार्थ. अब मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स तुम लोग के लिए. ओके, प्लीज पे अटेंशन. ओके, इस वर्ड को बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन. क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ज्यूरिसडिक्शन. दिस इज कॉल्ड एज ज्यूरिसडिक्शन. सब लोग होके चलेगा तुम? अच्छा हाँ. ओके, ना सुनो मेरी बात. ओके, नाउ ये तुम हो. ओके, ना ना तुम नहीं हो, ये कोई और है, एक्स है. इसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गए. ओके, इसके ऊपर केस हो गया मर्डर केस. ओके, तो ये क्रिमिनल केस हो गया. अब ये क्रिमिनल केस, ध्यान से सुनो माय फ्रेंड्स, ये क्रिमिनल केस स्टार्ट कहां होगा? मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्रिमिनल केस स्टार्ट कहां होगा? वेयर विल इट स्टार्ट? This criminal case will start in subordinate courts. Where will it start? It will start in subordinate courts. Okay, very good sir. तो सर हाई कोर्ट में नहीं स्टार्ट करना? ना ना ना, ये कहां पे स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. ठीक है, वेरी गुड सर. तो ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, तो मैं बोलूंगा the subordinate courts are the courts of first instance. मैंने क्या बोला? Courts of first instance in case of criminal cases. In case of, मैंने क्या बोला?
criminal cases. मैं फिर से बोलूं, रिपीट करो, मैं क्या बोल रहा हूं? Subordinate courts are the courts of first instance. First instance मतलब केस यहां स्टार्ट होगा in case of criminal cases. ठीक है सर. अब इसको एक और टेक्निकल लाइन में बोलूंगा. अब मैं बोलूंगा for an individual in a criminal case, subordinate court is the court having original jurisdiction. Is the court having original jurisdiction. क्या वर्ड यूज किया मैंने? Original jurisdiction. Original jurisdiction मतलब the court having first instance or the court of first instance. जहां तुम पहली बार कोर्ट के अंदर जा रहे हो वो होता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और उसी को बोलते हैं कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. एक ही चीज को अलग अलग भाषा में बोलने का तरीका. ओके, जहां कोर्ट के स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, उसी कोर्ट को बोलते हैं दिस कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. बात समझ में आया या नहीं? यस और नो? वेरी गुड. चलो अब रुको. ओके, डोंट ब्रीथ. अब सांस मत लो, रुक जाओ. अब हमारे पास सिविल केस है. ओके, तो दो ब्रदर्स की फाइट हो रही है. ओके, एक ब्रदर दूसरे ब्रदर की प्रॉपर्टी पर लड़ाई कर रहा है. तो हमने कौन सा केस हो गया? सिविल केस. अब सिविल केस कहां स्टार्ट करोगे? सिविल केस स्टार्ट कर सकते हो या तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट्स में. मैंने क्या बोला? या तो हाई कोर्ट्स में या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में. तो अब मैं लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं. मैं क्या बोल रहा हूं? द हाई कोर्ट और द सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी द कोर्ट्स ऑफ, बोलते जाओ, फर्स्ट इंस्टेंस इन केस ऑफ व्हिच केसेस? सिविल केसेस. या मैं क्या बोलूंगा? द हाई कोर्ट कैन बी द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और द सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ सिविल केसेस. बात समझ में आया या नहीं? बच्चे सबको समझ में आ रहा है? नोट्स बनाते जाओ प्लीज, रिलैक्स मत रहो, बैठो मत. ओके, समझ में आ गया ना फ्रेंड्स? क्या रिपीट करना सुदम? गाना गाऊं मैं? क्या रिपीट करूं? अब इतना मुश्किल तो है नहीं यार, इतना बना रहे हो. क्या मुश्किल है? सिविल केस की एक लाइन, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. क्यों है पुत्र? इतना सिंपल है. हो गया? बच्चा समझ में आया भैया? ओके, हाँ लिख ले. ना सुनो सर, एक बड़ा मुझे बुरा लग रहा है. ओके ना, मुझे बुरा क्या लग रहा है? क्या मुझे बुरा लग रहा है? मुझे बुरा ही लग रहा है कि सर मैं इंडिविजुअल हूं, ना तो सिविल केस में ना क्रिमिनल केस में, नाइदर इन सिविल केस नॉर इन क्रिमिनल केस. सुप्रीम कोर्ट का तो दरवाजा मेरे लिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है ही नहीं. इट इज नॉट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. यस और नो? यस और नो? मृदुल क्लैरिफाई कर जो तूने लिखा है अभी. मृदुल व्हाटएवर यू क्लैरिफाइड एक बार लिख वापस लिख. वेरी नाइस मृदुल, मेरी तरफ से चॉकलेट तेरे को. ओके, कोरियर में भेज रहा हूं, देखना. What am I saying? The Supreme Court is the court of original jurisdiction. Supreme Court is the court of original jurisdiction for an individual only when there is violation, abridgment and contravention of fundamental rights. Sir, civil में नहीं जा सकता ना, criminal में नहीं जा सकता ना. किस में जा रहा हूँ सर? मैं तब जाऊंगा जब मुझे रिट्स की जरूरत है. Are you understanding? सिर्फ तब ही मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, वरना मुझे जाना मना है. सर ये आप लोगों ने गलत बात बनाई. सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा क्या फर्स्ट टाइम? ओके नहीं बेटा, इतना भी बुरा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट इज, ध्यान से सुनो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट इज the court of original jurisdiction. However, sir, कहां पर है court of original jurisdiction? Only when there is a dispute between the center and the state. Sir, individual के लिए नहीं है ना, only between center and the state या फिर center and more than one state. मेरी बात समझ में आई? ये Supreme Court becomes the court of original jurisdiction never for an individual but only between center and the state and center and the two states. There are more than two states. ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 131. मैं तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा ऐसे बातें में. समझ में आ गया कि नहीं? 131 में मैंने तुम्हें बता दिया. तो अभी मैं 3-4 मैंने ऐसे ही बता दिया तुमको. 124 में पता चुका, 129 पता चुका, 131 पता चुका, 141 पता चुका. समझ में आ गया नहीं? बात में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे. ऑल गुड? यस. तो मैं ना, हमारे जो दोस्त है वो बड़े नाराज हुए. ओके, तो ये बड़े नाराज हुए, बोले कि हाँ सर हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट किसी काम का ही नहीं. ओके, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते. ओके, नाम सेंटर है नाम स्टेट है, हमारा तो कुछ काम का नहीं. तो मैंने बोला ना मेरा बेटा ऐसा चिंता नहीं करते. तो क्यों बेटा? वैसे नाराज नहीं होते. व्हाई? बिकॉज कोई भी केस हो, एनी केस, मतलब सिविल केस, क्रिमिनल केस, मैट्रिमोनियल केस, टैक्स केस, रेवेन्यू केस, कोई भी केस हो, और कहीं से भी हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हो, हाई कोर्ट में हार गए, किसी ट्रिब्यूनल में हार गए, म्यूनिसिपैलिटी के कोर्ट्स में हार गए, कहीं भी हार गए, आई डोंट केयर, यू कैन फाइनली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. कोई मनाही नहीं है. यू कैन ऑल रीच द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट यूनिवर्सल अपलेट जुरिसडिक्शन. कौन सी जुरिसडिक्शन? मैंने क्या बोला? अपलेट जुरिसडिक्शन. So Supreme Court takes care of all the kinds of appeals from all the kinds of cases from all the kinds of courts. So ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 132 to 134 में. Are you understanding this part or not? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है the highest appellate court. What is this called as? The highest appellate court. और इसकी jurisdiction को appellate jurisdiction बोलते हैं. Are you understanding this part or not? My friends, तुम्हें समझ में आ गया या नहीं? Yes or no? Okay. Everyone is clear? आगे चले? All right. ना अब गड़बड़ कुछ और ही होगी. क्या गड़बड़ है सर? आपको ठीक ठाक चल रहा है ना? अभी तो गड़बड़ होगी ना मेरे. तो मैंने माइलॉट से जो स्टोरी स्टार्ट की थी वो तो तुमने पूछी नहीं, तो मैंने माइलॉट को पूछा था. ओके, अरे हो तो गया. आदित्य डाउट्स क्यों पूछते जाते हो यार? तुम लोग पढ़ने के बाद ही पूछते जाते हो. पूछ, पता तो गया ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसकी है, हेरिट जुरिसडिक्शन. दोनों
या तुम मेरा प्रीवियस वीडियोस पढ़ के नहीं आए क्या? हम लोगों ने किया हुआ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हो। क्या तुम वीडियोस देखो बच्चा, डाउट्स की दुकान छोड़ दो। ओके, ना सुनो, अब चक्कर क्या है? तो मैं माय लॉर्ड के पास गया, मैंने कहा माय लॉर्ड, अब क्या दुख है? तो बोले सिद्धार्थ दुख कुछ और है यार। मैंने कहा क्या दुख है सब बताओ तो सही। बोला बेटा हमें बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हमारा काम था ओनली फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा फिर तो प्रॉब्लम क्या माय लॉर्ड? तो बोले सिद्धार्थ तो समझ नहीं रहा बच्चे, हमें लगा था कि सिविल और क्रिमिनल केसेस ज्यादातर खत्म हो जाएंगे इन द हाई कोर्ट एंड पीपल विल बी सेटिस्फाइड ओवर हियर। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं, अगर तुम हार जाओगे तो यू विल गो टू द हाई कोर्ट। ओके, हमें लगा था हमें सिर्फ तब बुलाया जाएगा जब याद किया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एक्चुअली जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी, ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट द ओरिजिनल नंबर ऑफ टाइम्स आर्टिकल 124 लिखा गया था, ओके, सो हमें ये तब बोला गया था, तो हमारे पास सिर्फ 8 जजेस थे, 7+1 थे। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स को मालूम था कि हमारा तो कुछ खास काम बड़ा होगा नहीं, ओके, सो हम लोगों ने ये बात बोली थी कि भाई हम लोगों को इससे ज्यादा जजेस की जरूरत है, हम तो फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नाउ अब भी जाकर अभी रो पीट के भी हमने 34 जजेस ही बनाए। तो मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड, अभी मैंने सुना कि अभी आप लोगों के 34 जजेस हुए, उससे पहले तो 31 थे, तो अब 34 जजेस हो गए। तो बोला हाँ सिद्धार्थ, लेकिन दुख समझ, हम दो जजेस करके बैठते हैं, मतलब कुल मिला के हमारे पास 17 कोर्ट्स है, ओके, और कितने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है सिद्धार्थ? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ओके, ये सारी अपील आके हाई कोर्ट में रुकती है, फिर कोई ना कोई तो हारेगा ही ना, तो हाई कोर्ट में जो हारेगा, ओके, वो जाकर हमारे पास आ जाएगा। तो माय फ्रेंड ये तो ट्रैफिक जैम हो गया ना। ये सुनो, हम 17 कोर्ट्स, इतने हजारों कोर्ट्स के, इतने सारे हाई कोर्ट्स के सबके सब अपील हम फेस करेंगे, तो हम तो फंस गए। और मैंने कहा बराबर है सर, ये तो ट्रैफिक जैम हो गया, ओके, ऑल रोड्स लीड टू सुप्रीम कोर्ट। तो बोला हाँ। मैंने कहा सर ये तो गड़बड़ हो गई। और बोला सिद्धार्थ गड़बड़ क्या हो गई? मेजर गड़बड़ हो गई, 60,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हो गए हमारे यहाँ पे, 60,000 पेंडिंग केसेस हो गए। एक बार जरा 17 से डिवाइड करो, हर कोर्ट के पास 4,000 केसेस है, प्लस बाढ़ आती जा रही है, नंबर ऑफ केसेस आते जा रहे हैं, ओके, ये तो बर्बाद है, मैथमेटिकली इंपॉसिबल हो जाएगा, पेंडेंसी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड। फिर बोला सिद्धार्थ तूने टाइम मैगजीन पढ़ी है? मैंने कहा नहीं कभी नहीं पढ़ी, बड़ी महंगी है। तो बोले पढ़ उसको जाके, ओके, तो उसमें लिखा हुआ था वन डे कमेंट केम दैट द व्हील्स ऑफ जस्टिस नेवर मूव इन इंडिया, व्हील्स ऑफ जस्टिस हार्डली मूव इन इंडिया। वो भाई हमारी गलती थोड़ा सिद्धार्थ, ओके, तुम्हारे पास केसेस इतने आ रहे हैं, हम क्या करें? मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड। फिर मैंने कहा माय लॉर्ड मैं आपको एक दुख ऐड करके बताऊं? तो बोला हाँ सिद्धार्थ बता क्या दुख है? मैंने कहा माय लॉर्ड एक दुख, केसेस इतने आ रहे हैं, हम क्या करें? मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड। फिर मैंने कहा माय लॉर्ड मैं आपको एक दुख ऐड करके बताऊं? तो बोला हाँ सिद्धार्थ बता क्या दुख है? मैंने कहा माय लॉर्ड एक दुख और भी है, ओके, कि आर्टिकल 130 पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ऑफ सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एट न्यू दिल्ली। ये क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 130 में? ओके, आर्टिकल 130 में लिखा है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी एट न्यू दिल्ली एंड unless the CJI decides in consultation with the president, और कोई सीट बनाई भी नहीं जा सकती। आर यू अंडरस्टैंडिंग राइट? तो मैंने क्या बोला, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एट न्यू दिल्ली। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा माय लॉर्ड आपको मैं एक अजीब सी बात बताऊं? तो बोला सिद्धार्थ पता, अब इतने से बताया। मैंने कहा माय लॉर्ड आपको मालूम है अबाउट 60 to 70% केसेस जो आपके पास है ना, वो नॉर्थ इंडिया से आते हैं, वेस्ट ईस्ट और साउथ मिला के 20 to 30% बनते हैं। तो डू यू नो व्हाई? बिकॉज यहां से यहां पर फ्लाई करना बड़ा एक्सपेंसिव है, डिस्टेंस विल ऐड टू दिस, वकील पैसा ज्यादा लेगा एंड इट विल बी इनकन्वीनियंट, यस और नो? तो इसीलिए ज्यादातर केसेस यहां से आ रहे हैं। तो बोला ओके सिद्धार्थ, तो तू क्या सजेस्ट कर रहा है? मैंने कहा माय लॉर्ड आप एक काम करो। बोले क्या? आप ना ये पावर यूज करो, सीजीआई को यूज करो, और ये सीजीआई के हिसाब से इस सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस बना दो, सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस बना दो। तो बोले क्या बोल रहा है सिद्धार्थ? मैंने कहा हाँ माय लॉर्ड इसके हम ब्रांचेस बना दो, ओके, तो ब्रांचेस बना दोगे तो कम से कम दो काम हो जाएंगे, वन दिस इनकन्वीनियंस का प्रॉब्लम गायब हो जाएगा, ओके, एंड द सेकंड दुख ये खत्म हो जाएगा दैट द व्हील्स ऑफ जस्टिस का वाला जो 60,000 पेंडिंग केसेस है ना, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले सिद्धार्थ यही तो तेरा बचपन है बेटा। मैंने कहा क्या? ये पिच क्या लिखा हुआ है अंकित? व्हाट इज दिस पिच? चलो, तो मैंने जो माय लॉर्ड को बात बोले, अच्छा पीठ, ओके 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 ओके, हाँ गुड गुड अंडरस्टैंड। तो मैंने माय लॉर्ड को बोला, मैंने कहा माय लॉर्ड एक काम करो, न्यू दिल्ली यहां रहने दो, इसको आप सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ दो, ओके, दिस विल बी डीलिंग एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ओके, और 4 और ब्रांचेस बना दो। मैंने बोला 4 और ब्रांचेस बना दो जिनको हम नाम देंगे एनसीए। क्या नाम देंगे? एनसीए, ओके, दे आर कॉल्ड एज नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स। क्या बोलते हैं इसको? नेशनल कोर्ट ऑफ अपील्स। सो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील नॉर्थ है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील ईस्ट है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वेस्ट है, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील साउथ है। यस, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वेस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे लेते हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एक्सेट्रा, यहाँ पे ले लेंगे, साउथ हम ले लेंगे तमिलनाडु, ऐसे एग्जांपल, ओके, जैसे इंडिया, ओके, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा यहाँ लेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे पंजाब हरियाणा वगैरह यहाँ जाएंगे, ओके, बंगाल उड़ीसा नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ओके। तो बोले सिद्धार्थ तो कितना बोला है? मतलब क्या हुआ सर, ऐसा क्या हुआ, इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने, ओके, अब 4 जगह काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोला सिद्धार्थ चल पहले क्वेश्चन का आंसर दे फिर मैं तुझे बताऊंगा। मैंने बोला अच्छा बताओ। बोला ये जो नॉर्थ वाला है, ओके, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? मैंने बोला सर देखो ऐसा कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर वाला डाल देते, हरियाणा डाल देते, पंजाब डाल देते और राजस्थान यहाँ डालते, ओके। बोला सिद्धार्थ ठीक है, ये एनसीए कौन से स्टेट में डालेगा? हाँ, ये कौन से स्टेट में बिठाएगा बेटा इस कोर्ट को? जम्मू में बिठाएगा कि पंजाब में बिठाएगा कि हरियाणा में बिठाएगा कि राजस्थान में बिठाएगा? राजस्थान में बिठाओगे तो हरियाणा वाले बोलेंगे हमारे यहाँ बिठाओ, पंजाब वाले बोलेंगे ना हमारे यहाँ बिठाओ, जम्मू वाले बोलेंगे हमारे यहाँ बिठाओ, कश्मीर वाले बोलेंगे हमारे यहाँ बिठाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? ओके, सो ये अलग अलग जो स्टेट्स है, ओके, ये जो अलग अलग स्टेट्स है, यहाँ पर तुम एक और डिवीजन करने जा रहे हो माय फ्रेंड्स। मतलब जो हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन है, हमारी रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन है, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं सर। इसमें तुम एक नया पार्टिसिपेंट ला रहे हो, उसको बोलते हैं जोन्स, जो तुमने डेवलप कर दिया।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और तुम इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाओगे विद स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और फेडरलिज्म मेरा बेटा इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइट। यस और नो? बच्चे समझ में आया या नहीं? हाँ यार, हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? यस और नो लिखोगे। Everyone has understood my friends? Okay, इस तरह से पढ़ना पड़ता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। ये मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसको जो आइडिया आया ओके वो बना दो। सो लॉ कमीशन ने इसको प्रपोज किया, बट रिकमेंडेशन से हैज टू बी डन वेरी वेरी केयरफुली, तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील फेडरलिज्म का सवाल उठा देगी। ओके, बंगाल बोलेगा हमारे यहाँ पे लगाओ, असम बोलेगा हमारे यहाँ लगाओ, हमसे क्या गलती होगी? फिर कौन सा आंसरेबिलिटी है, जोन कौन सा किसको कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो तुम एक थर्ड पार्टिसिपेंट लिया होगा। इसलिए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जबकि 2014 में इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन इट हैज स्टिल नॉट बीन ब्रॉट इनटू फोर्स। लेकिन ये अचानक से फिर से जरूरी हो गया बिकॉज रिसेंटली श्री वेंकैया नायडू ने अपनी स्पीच में बोला है कि वी नीड टू लुक एट नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लुकिंग एट दिस। और अगर तुमने वो आर्टिकल पढ़ा तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था आर्टिकल 130। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 130 कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो 130 को यूज करके ही यू कैन डू दिस एंटायर थिंग पार्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस माय फ्रेंड्स? फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट हैव एनी रेमेडी फॉर दिस आदित्य। ओके फ्रेंड्स, ऑल क्लियर? ऑलराइट, गुड। राजवीर इज आस्किंग सम डाउट। राजवीर सर इज आस्किंग, सर आज पढ़ने का मूड है? मूड है क्या मतलब? मूड है, पढ़ो फिर। अच्छा पहले का? ओके, पुराना पहले से पढ़ने का मूड था। ओके सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, इंडियन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बाय पाकिस्तान इज फेल्ड। बाय पाकिस्तान इज फेल्ड? क्रेजी कंट्री, लो आईक्यू पीपल, इसलिए फेल हो गए। अच्छा, ही वाज आस्किंग मी। अच्छा सर, कीप द बुक इन सीरीज फॉर्म, प्लीज डोंट मेक अ सिंगल वर्क। ठीक है मुकेश सर। यार ये तुम डाउट्स पूछो क्या करोगे? सर कुछ टफ वर्ड्स है उनको हाईलाइट करके अलग से स्टार्ट डिफाइन कर देना। ओके, अच्छा चलो आगे छोड़ दिया, बुक पे वापस आ गया। ऑलराइट, अब ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें दो तीन को बता दिए थे, अब एक और चक्कर है। अब एक हमारा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? मैंने तुम्हें मैथ्स पढ़ाना छोड़ दिया गलती। मतलब यस, व्हाट इज द मैथ्स हियर? मैथ्स हियर इज, इसमें मैंने आप लोगों को मैथ्स पढ़ाया और तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं है बात मेरी। मैंने बोला मैंने ये बात बोला कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्स। तो सपोज एक्स एंड वाई के बीच में एक केस चल रहा है। ओके, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्स में थाउजेंड्स ऑफ केसेस है। यस और नो? राइट। तो इनमें से कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। अब जो हारेगा वो अपील में जाएगा तो हाई कोर्ट। तो जैसे थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में केसेस है, तो थाउजेंड्स इनटू थाउजेंड्स, लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ अपील्स मस्ट बी इन द हाई कोर्ट। लैक्स, यस और नो? एंड वो लैक्स के लैक्स में से कोई ना कोई हारेगा, कोई ना कोई जीतेगा। जो हारेगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यस और नो? सो देयर शुड बी लैक्स एंड लैक्स ऑफ। ओके, सभी थोड़ी जाएंगे सिंपल। आपके बाद अपील का चांस होगा, आप नहीं जाओगे। आप बोलोगे छोड़ यार, जैसा प्रभु ने चाहा, मेरी जमीन ले जा मेरे दोस्त, ऐसा करेगा? ले जा बेटा, मैं दानवीर कर रहा हूँ। ओके, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। यस और नो? ओके, बट जिसके बाद मौका होगा तो ट्राई करेगा ना फ्रेंड्स। ओके, सो द पॉइंट हियर इज देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस दैट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यस और नो? नाउ जो लैक्स एंड लैक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर्स जाएंगे, तो कोई लैक्स एंड लैक्स है तो उसकी पेंडिंग केसेस से 60,000 कैसे? अरुण चौहान साहब बोले क्वेश्चन ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट। तो अरुण चौहान साहब जरूर लॉयर बैकग्राउंड के। अरुण चौहान साहब आप आंसर दो, आप वकील हो लगता है। बताओ यार, जब लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में है तो सिर्फ 16,000 पेंडिंग केसेस कैसे हैं? यस और नो? इसका रीजन है माय फ्रेंड, इसका रीजन है दैट हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। ओके, हाई कोर्ट में डिसाइड। अच्छा, तो लॉयर अरुण चौहान, लॉ ऑप्शनल ऐसा लिखकर मत आ जाना लॉ ऑप्शनल में, गड़बड़ हो जाएगी माय फ्रेंड। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सी, सबऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट जाना ना माय फ्रेंड्स इन एन अपील। If you want to go to the high court in appeal, it is a matter of right. It is a matter of right. मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ओके, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा ही जाऊंगा। आई विल अपील ओवर देयर। ओके, लेकिन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना इज नॉट अ मैटर ऑफ योर राइट। मतलब इट इज नॉट माय अधिकार। नो नो नो, इट इज नॉट माय हक। इस बार सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ता है परमिशन। उस परमिशन को बोलते हैं स्पेशल लीव। क्या बोलते हैं उस परमिशन को? स्पेशल लीव। सुप्रीम कोर्ट मुझे देगा स्पेशल लीव। लीव मतलब परमिशन, स्पेशल तो स्पेशल होता है। तो पहले मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन को बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। क्या बोलते हैं उसको? स्पेशल लीव पिटीशन। उसको बोलते हैं एसएलपी। ओके, जो कि प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि कहां प्रोवाइडेड है? अंडर आर्टिकल 136। तो पहले तुम्हारा वकील, तुम्हारा एडवोकेट एक पिटीशन मूव करेगा एसएलपी, और वो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट में माय लॉर्ड्स को, माय लॉर्ड प्लीज प्लीज, ये प्लीज बड़ा खतरनाक प्लीज है। ओके, ये प्लीज अलाउ माय एसएलपी। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा व्हाई, तो मैं बोलूंगा माय लॉर्ड बिकॉज मेरा जो केस है it requires interpretation of the constitution. क्या मैंने बोला? Interpretation of the constitution of India, or it requires, or it is a substantial question of law. मैंने क्या बोला? फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या मैंने बोला? किन दो बेसिस के बेसिस पे मैं मूव कर रहा हूँ स्पेशल पिटीशन की? माय लॉर्ड, मेरा केस जो है वो साधारण केस नहीं है। इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर माय लॉर्ड इट इज अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, उस पर अग्री करेगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया, ओके वकील, योर डियर मिस्टर काउंसिल, आई थिंक वी एग्री टू दिस पॉइंट दैट योर केस रिक्वायर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन एंड ओनली देन विल दे हियर योर मैटर। तब वो तुम्हारा केस देखेंगे और तुम्हारी अपील को एडमिट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, स्पेशल लीव पिटीशन का सक्सेस रेट अबाउट 1 to 2% है इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब 100 में से 99 SLPs इसी केस पर डिसमिस हो जाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एवरी डे सुप्रीम कोर्ट के हम लॉयर्स हम हारते जाता है और जीतते कम है। वंस इन अ वाइल, ओके, वंस इन अ वाइल यू मेक दिस, बिकॉज़ ये बहुत टफ होता है टू एंश्योर कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मान जाए दैट इट रिक्वायर्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कौन से आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड इज आर्टिकल 136। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक और नया इंट्रोडक्शन किया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उन्होंने हाई कोर्ट को एक पावर दी। उस पावर को बोला गया आर्टिकल 134A। उन्होंने बोला कि कभी-कभी हाई कोर्ट के अगर जज को खुद ऐसा लगे वो तुम्हें हरा रहा है, वो तुम्हारे अपील, तुम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हो, ओके, और हाई कोर्ट को लगे कि नहीं यार ये केस मैंने नहीं डिसाइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ इट रिक्वायर्स, बोलते रहो, इट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ टू बी आंसर्ड और इट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो हाई कोर्ट खुद एक सर्टिफिकेट लिखता है, खुद ही एक सर्टिफिकेट लिखता है और वो सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 134A बोलता है और वो तुम्हें तुम्हारे लॉयर को दे देता है। वो मिस्टर काउंसिल, मैं तुम्हारा केस अपील जीतने नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये सर्टिफिकेट दे सकता हूं। वुड यू लाइक दिस सर्टिफिकेट? तो मैं बोलूंगा हां माय लॉर्ड प्लीज दे दो। व्हाई? ताकि मैं फटाक से इस सर्टिफिकेट को लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं। ओके, वरना मुझे क्या मूव करना पड़ेगा? स्पेशली पिटीशन जिसका सक्सेस रेट बड़ा बुरा है। ओके, तो बहुत सारे लॉयर्स जो हाई कोर्ट में होते हैं, जो हार रहे होते हैं अपील, तो कुछ नहीं बोलते, माय लॉर्ड अगर और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज सर्टिफिकेट दे दो ताकि आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 136A नहीं बेटा, 134A। बिल्कुल 134A। ओके, so 136 is SLP, 134A certificate. So I hope you're understanding. Out of the lakhs and lakhs and lakhs of cases, usually very few percentage will actually be heard in the Supreme Court. इसीलिए वो जो नंबर था वो 60,000 था। Are you understanding this part or not? But from the 44th Constitutional Amendment Act, a special power was given to the Supreme Court or to the High Court under Article 134A, in which the judge of the High Court, if he is himself convinced that this case requires a substantial question of law or it requires an answer to a substantial question of law or interpretation of the Constitution of India, then he can do so by signing a certificate, by granting a certificate to the person. That certificate is called a certificate under Article 134A. To get direct entry, this is a direct entry to the Supreme Court given by the High Court itself. So there are only two ways: one by SLP, one is by 134A. Are you clear? छोटा ही मत लिखना, it is capital A. Please remember amendment है वो. Everyone is clear, my friends? All good? Okay, तो अभी तक हमने कितने आर्टिकल्स तो ऐसे ही कर लिया। If you notice on this part, okay, मैंने तुम्हें बता दूं, we have done many articles. Okay, now what is the articles we have done? We have done 124, हमने कर लिया 129, हमने कर लिया है 130, we have done 131, we have done 132 to 134, we have done 134A, we have done 136, we have done 141. Yes or no? 132 to 134 is appellate jurisdiction. 131 is original jurisdiction. This is seat of the Supreme Court. This is final interpreter of the Constitution. ये बाद में फिर से आएगा जब हम इसे बोलेंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है. Okay, Article 124 is the introduction. ये वो सर्टिफिकेट है. 136 is SLP. 141 is law of the land. I hope you remember the doctrine of precedence. Yes or no? It's clear? All good. Okay, I think आज के लिए हम इतना रखेंगे. ये थोड़ा heavy weight हो जाएगा. Okay, we don't want to do this. Okay, चलो, see you next time. Thank you. God bless.